Good afternoon to all of you. Today's topic is semiconductor diode. So before going through the semiconductor diode, we should we should go through some important terms that are p-n junction, depletion region, diffusion current. Third one is barrier potential. Fourth one is junction capacitance. So these terms are very important terms in p-n junction diodes. So let's start with the first one. What is p-n junction? So the p-n junction is nothing, it is a junction of two layers. Okay, the p-n junction is formed when p-type semiconductor layer is joined to the n-type semiconductor layers. Okay, so it is called a junction because it joins two layers. So this is the basic diagram of p-n junction. Okay, so this is called a junction where two semiconductor layers are joined each other. Okay, so this is called a junction. Now come to the second one is depletion region. What is depletion region? So depletion region is nothing. Before going through the depletion regions, we should know about diffusion process. What is diffusion process? So this is called a junction. Okay, this is called a junction. So in p-type semiconductor, the majority charge carriers are holes. So we are representing holes as small circle and electrons as a dot. Okay, so in p-type semiconductor, the majority charge carriers are hole. Okay, or minority charge carriers are electrons. Okay, or in n-type semiconductor material, their majority charge carriers are electrons. Okay, so here we can see that for each holes there is a immobile sign, negative opposite charge immobile signs. Okay, what is immobile signs? Those charge which do not have capacity to move from one place to another place. Okay, these the immobile signs are not flow here or from one place to another place. Okay, so these are called immobile sign and these are called mobile sign. Mobile signs, basically mobile signs are those ions which can easily move from one place to another place. So these ion can move, and this one cannot move, so these are called the immobile signs. Okay, so we can see here that this is called a junction. So in this part there is a electrons. Okay, these are called electrons, and for each electrons there is a positive immobile sign. Okay, positive immobile sign. So what is the need of this immobile signs? So basically what happened, our charges are always electrically neutralized. Okay, electrically neutralized means अगर मेरे पास एक कोई चार्ज है, मीन्स अगर हम बात करें होल्स का, तो होल्स के साथ होल्स मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग नेगेटिव चार्ज. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नेगेटिव आयन मेरा हमेशा साथ होगा ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज हो, जिससे ये जो है वो मेरा क्या, इमोबाइल साइंस. ओके, सो तो सिंपल इस पे प्रोसेस क्या हो रहा है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के इस साइड मेरा इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल्स है, तो होल्स के जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज we already know about opposite charge attract each other. Okay, so what happened here, these are electrons and these are holes. So both these are opposite charge, so holes attract इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट ईच अदर. तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके होल्स के पास जाएंगे. ठीक है, होल्स क्या है? होल्स एक वैकेंट प्लेस है जिस पे टेंडेंसी होता है वो किसी को फिल कर सके, तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को फिल करता है, इसलिए हम लोग होल्स को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा. तो अब यहाँ से जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जो डिफ्यूज़ कर गया, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं. तो डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन गेट न्यूट्रलाइज, मीन्स यहाँ से जाके ये वैनिश हो जा रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल से क्या बच गया, सिर्फ इमोबाइल आयन बच गया. मीन्स जो मेरा जो मोबाइल आयन्स है जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे पे डिफ्यूज़ कर गए, न्यूट्रलाइज कर गए. ठीक है, अब इस जब भी
हम लोग जानते हैं कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दे मस्ट क्रिएट अ करेंट। मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट मेरा प्रोड्यूस होता है, तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न करंट। सो when electrons moves then some current is produced due to diffusion process is called diffusion current. So what is depletion region? So what is depletion region? So जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गया तो यहाँ पे आयन बच गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव आयन्स बचा और इधर पॉजिटिव, ये मेरा जंक्शन है, तो इधर पॉजिटिव आयन बचा और इधर नेगेटिव आयन बचा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसा रीज़न होता है जहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो मीन्स वहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो अब ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होता है। इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। मीन्स चार्ज आर डिप्लीटेड फ्रॉम दिस रीजन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ डिप्लीशन रीजन। सो बेसिकली ये क्या हमको एक प्रोवाइड कर रहा है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये विड्थ होगा। तो अब सिंपली अगर हम लोग देखें कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे पोटेंशियल जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके मीन्स हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल होता है। तो अब सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, तो उस तरह के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन्स के चलते जो मेरा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ओके, this is the basic structure of depletion region and potential barrier. Okay, so it is observed that as shown in a figure, in p-type semiconductor layer majority charge carriers are holes and in n-type semiconductor layer minority charge carriers are electrons. It is also observed that p-type and n-type layer contains immobile ion, means negative ions in p side and positive ions in n side, which make each region electrically neutralize. ओके, मीन्स पी टाइप में मेरा नेगेटिव आयंस है और एन टाइप में मेरा पॉजिटिव आयंस है, जिससे वो दोनों न्यूट्रलाइज हो रहा है, एक दूसरे को कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज because of mutual repulsion the free electrons on n side tends to diffuse toward the p type and holes from the p type tends to diffuse toward n side। मीन्स बोल रहा है कि म्यूचुअल रिपल्सन हो रहा है, मीन्स जो मेरा यहाँ पे होल्स था, यहाँ पे होल्स था और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, वो क्या म्यूचुअली डिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअल रिपल्सन कर रहा है, ठीक है। सो इसके चलते क्या हो रहा है कि एन टाइप्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज़ होके पी टाइप पे जा रहे हैं, पी टाइप पे जाके डिफ्यूज़ हो रहा है, जिससे मेरा डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके चलते मेरा जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न करंट। ओके, अल्टीमेटली अ लेयर इन नेगेटिव आयंस ऑन पी साइड एंड द लेयर positive ions on n side forms the junction. Okay, so next one here, there is a small region on each side of junction where carriers of electricity are absent। मीन्स लास्ट में मेरा क्या हुआ, हम लोग यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, इस रीजन पे देखिए, इस रीजन पे देखिए, यहाँ पर ना ही होल्स है ना ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मीन्स ना इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं होंगे तो मेरा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जिसके चलते मेरा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, जिसके चलते करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन्स ये ऐसा रीज़न हो गया जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चार्ज है वो मेरा हट गया, मीन्स डिप्लीटेड हो गया। इसलिए इस तरह के रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। ओके, hence there is a small region on either side of junction where carriers of electricity are absent. This particular region is called depletion region. It may be named as space charge region or also it is known as transition regions. ओके, इसको 3 नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए व्हाट इज़ डिप्लीशन रीजन, व्हाट इज़ स्पेस चार्ज रीजन और व्हाट इज़ ट्रांजिशन रीजन, सो बोथ थ्री ऑल थ्रीज आर सेम, ठीक है, तीनों ही के तीनों सेम ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, द डिप्लीशन रीजन प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी एंड फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन। मीन्स बता रहा है कि जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे ना ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी पे जाएंगे ट्रांसफ़र होके, और ना ही पी में जो होल्स थे वो एन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उस तरह के रीजन्स को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन।
और उस रीजन में जो मेरा पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो कि मेरा चार्ज के फ्लो को रोक रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल. ओके, साइंस दिस रीजन कैन regarded to be providing a potential called barrier potential. Okay, now come to the next one, that is junction capacitance. What is junction capacitance? So junction capacitance is a capacitance which formed in a पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बाइस. ठीक है, जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो पीएन जंक्शन डायोड पे फॉर्म होता है रिवर्स बाइस पे. इन नॉर्मल कैपेसिटर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर इलेक्ट्रोड्स विच अलाउ द कंडक्शन. ठीक है, नॉर्मल जो कैपेसिटर होता है दो प्लेट होता है. ठीक है, दो प्लेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, जो हमको अलाउ करता है कंडक्शन, जिसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लगा रहता है. ठीक है, वेयर एज मीडियम बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट इज प्योरली इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द कंडक्शन. ओके, सो when voltage is applied across the capacitor, the charge accumulated at the electrodes, the voltage will not move through the dielectrics. Okay, सिंपली क्या होता है कि जो मेरा ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर होता है, इस पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है. डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जहाँ से मेरा चार्ज फ्लो करे कि ना जाए. ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि पीएन जंक्शन में एक डिप्लीशन रीजन्स बना है. ठीक है, डिप्लीशन रीजन में हम लोग पोटेंशियल बैरियर देखें कि ये मेरा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, अगर हम ये इसको पी ले रहे हैं और इसको एन ले रहे हैं तो ठीक है. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि मतलब इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल सेम है. मीन्स अभी यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक मेरा मीडियम हो गया. जंक्शन जो डिप्लीशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, मीन्स यहाँ से मेरा करंट फ्लो नहीं हो रहा है. तो सेम कैपेसिटर भी वही हो गया. ठीक है, but the dielectric medium will allow an electric field to flow through it when huge number of charge accumulated. फिर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके चलते मेरा फिर वहाँ से कंडक्शन शुरू हो जाता है. ठीक है, accumulated at the electrodes, however the electrodes are able to store electric charge. ठीक है, so the ability of storing this ability of storing electric charge is known as capacitance. So capacitance क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स चार्ज स्टोर करते हैं. तो चार्ज को जो स्टोर करके रख रहे हैं उस स्टोरिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस. ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखें कि हम लोग अभी जो डायग्राम देखें वो क्या होता है कि मेरा ये डिप्लीशन रीजन है. मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है और ये मेरा होल्स है. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, ये मेरा देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं. तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जहाँ पे मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है. ठीक है, तो अब ये जो होगा वो मेरा चार्ज कंडक्टिव प्लेट्स है. ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी. ठीक है, जो सी है वो मेरा क्या है, कैपेसिटेंस है. डी क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, चार्ज किस तरह से मेरा चेंज हो रहा है. एंड डी वी क्या है, चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, तो ये मेरा कैपेसिटेंस हो गया. ये मेरा एक कैपेसिटर का डायग्राम बना है कि ऐसा होता है. तो अगर हम लोग बात करें जंक्शन कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, जो एबिलिटी वो कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं चार्ज को, उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, जैसे जो पीएन जंक्शन अभी मेरा फॉर्म हुआ उस जंक्शन पे जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस. ठीक है, हियर in similar manner, when reverse bias voltage applied across the PN junction diode, the two layer P and N behave as electrodes and depletion region act as a dielectric mediums. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन में, जो पीएन जंक्शन मेरा फॉर्म हुआ, यहाँ नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पॉजिटिव आयंस थे. ठीक है, यहाँ जो पीएन जंक्शन मेरा फॉर्म हुआ, ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये मेरा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया. ये मेरा इलेक्ट्रोड्स है, एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हो गए. ठीक है, तो अब ये मेरा सिंपली क्या फॉर्म कर रहा है, एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है. जब इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन मेरा स्टार्ट होगा. द पी एन रीजन इलेक्ट्रोड्स एंड डिप्लीशन रीजन डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलाउज स्टोर्ड ऑफ चार्ज इन
electric field. The ability of storing charge is nothing but the capacitance, which in fact in terms of PN junction diode as a junction capacitance. So देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है मेरा नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। ये वाइड डिप्लीशन रीजन है। अगर हम इस पर नेगेटिव इस रिवर्स बाइस अप्लाई करेंगे तो ये मेरा फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी जे परमिटिविटी ए अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो सी जे क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस है, ई एस क्या, परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ए क्या है, एरिया ऑफ पी एंड एन टाइप रीजन, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशंस रीजन्स. Now come to the diffusion current. What is diffusion current? So if the concentration of charge carrier is different at the two end of the semiconductor material, this produce a tendency of carrier to diffuse from high concentration to low concentration, and that leads to diffusion current. So this is a diffusion current. So we can also define as when electrons move, then some current is produced due to diffusion process. Means जो diffusion process पे जब electrons move करके holes पे जा रहे थे, तो उस process के दौरान एक electrons जब flow किया तो current produce हुआ, तो उस current को हम लोग simply क्या बोलते हैं, diffusion currents, ठीक है। तो simply क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफरेंट एट द टू इंड, मीन्स दो इंड जो हम लोग का पी एन जंक्शन का दो इंड है, एक पी टाइप और एन टाइप है, इसका चार्ज कैरियर्स डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस प्रोड्यूस अ टेंडेंसी ऑफ कैरियर्स। तो सिंपली क्या लिखा है कि ये एक मतलब टेंडेंसी प्रोड्यूस करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स पे जाकर डिफ्यूज़ कर जाए फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। हाई लेवल से लो लेवल पे ये जाके डिफ्यूज़ करते हैं, जिसके चलते करंट फ्लो करते हैं, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न करंट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा पीएन जंक्शन के बारे में, डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो I will explain PN junction diode. Okay, their biases and VI characteristic of PN junction diode. Okay, so that is all for today. Thank you all of you.